Standard 11, subject is state and chapter number 2, presentation of data। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। मैंने आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे वो नोटबुक में लिखने को बोला था। आई होप आपने लिख लिए हैं। अब आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब हमने फर्स्ट जो चैप्टर था कलेक्शन ऑफ डेटा, सारे डेटा को कलेक्ट तो कर लिया, अब उसको प्रेजेंट कैसे करना है ताकि पीपल जो है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो वो कैसे प्रेजेंट करते हैं वो हमें सीखना है इन दिस चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग एंड नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? In the previous chapter, we have seen that the statistical information consists of two types of data, qualitative and quantitative. What is qualitative data? Which we can't measure in numbers. It is qualitative, and quantitative means which is presented in numbers or shown in the numbers. जिसको हम numbers में present कर सके उसको बोलते हैं quantitative data, और जिसको numbers में present नहीं कर सकते which is qualitative data. Quantitative data are based on quantitative variable, whereas qualitative data are based on qualitative variable. Quantitative variable is of two types, discrete variable and continuous variable. If a variable can assume definite or countable value within the specified range, then it is called discrete variable. जिस भी वेरिएबल ऑब्जर्वेशन, जिस भी नंबर्स जो काउंटेबल वैल्यू हो विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज, कुछ सपोज कि 1 to 100 के बीच में कोई भी नंबर हो उसको हम क्लासिफाई कर सके, उसको हम काउंट कर सके विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। द रेंज इज 1 to 100 फॉर एग्जांपल, देन इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। उसको बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड। ये एग्जांपल है नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, एक फैमिली में कितने चिल्ड्रन हैं, या फिर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड, रोड पे कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। इफ अ वेरिएबल x assumes the specific value 1.2, 1.3 and 1.5 etc., then it is also called discrete variable. If a variable can assume any value within the specified range, then it is called continuous variable. अगर किसी भी वैल्यू को अज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं कंटीन्यूअस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, हाइट ऑफ पर्सन, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन अ डे एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल। In practice, if we have to count something for obtaining the value of variable, then it is called discrete variable. In practice, if we have to count something for obtaining the variable, कोई भी वेरिएबल को ऑब्टेन करने के लिए कुछ काउंट करना पड़ता है तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, फॉर ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, वी हैव टू काउंट द चिल्ड्रन। फॉर ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन रोड, वी हैव टू काउंट द एक्सीडेंट। So they are examples of discrete variable. If we have to measure the observation for obtaining the value of variable, or if the value of the variable is expressed along with the measuring unit, then it is called continuous variable. Height of a person is measured in centimeter or inches or feet. Maximum temperature is measured in the Celsius. So they are the examples of continuous variable. The data based on discrete variable are called discrete data, and the data based on continuous variable are called continuous data. इसके बारे में डिस्कस में हम जो आगे इंफॉर्मेशन मिलेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। The data obtained at the end of the sample inquiry or population inquiry are called raw data or ungrouped data. जो इंक्वायरी करते थे हम, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ क्वेश्चन है, 3 मेथड यूज करके जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की थी उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं रॉ डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। वो सारा मिक्सअप डेटा होता है। These data are in haphazard form, so the statistical analysis becomes difficult. Hence, it is necessary to arrange data in systematic and short form. A process of arranging ungrouped or raw data into proper form is called classification.
of data and the data thus obtained are called classified data. जो भी रो फॉर्म में डेटा होता है, अनग्रुप्ड फॉर्म में डेटा होता है, उस डेटा को हमें प्रॉपरली सिस्टमेटिक अरेंज करना है, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, राइट। For example, it is known that the daily demands of a certain commodities during a week are 12, 16, 8, 12, 8, 8 and 10 respectively. From these raw data, it is clear that there are 3 days during which demand of commodity is 8 units, 1 day during which the demand is 10 units, 2 days during which the demand is 12 units and 1 day during which the demand is 16 units. Thus, the information can be presented in the following classified table. अब एक वीक में जो डिमांड है वो सपोज कि 5, 10, 12, 8, 8, 8, 6 and 7 है। कोई भी कमोडिटी है उसके यूनिट्स की डिमांड सपोज कि इतनी है, राइट। तो अब अगर इसको हम क्लासिफाई करें तो वीक में 3 दिन ऐसे हैं जिसमें कमोडिटी की डिमांड 8 यूनिट्स है, ऐसे 3 दिन। फिर एक दिन ऐसा है जिसमें 10 यूनिट्स है, फिर एक दिन ऐसा है जिसमें 12 यूनिट्स की डिमांड है, फिर एक दिन ऐसा है जिसमें 6 यूनिट्स की डिमांड है और एक दिन में 7 यूनिट्स। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें क्लासिफाई कैसे करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन दी हो, यहाँ पे हमने वीक और कमोडिटी का एग्जांपल लिया है, उसी तरह से इसको बोलते हैं रो डेटा और इसको हम प्रॉपरली क्लासिफाई करके लिखते हैं। पेज नंबर 15 के ऊपर दिया है टेबल शोइंग डेली डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यूरिंग अ वीक। उसमें फर्स्ट रो जो है वो दिया है डिमांड ऑफ कमोडिटी, उसमें 8, 10, 12 एंड 16, फिर टोटल और नीचे दिया है नंबर ऑफ डेज। 3 दिन ऐसे हैं जिसमें कमोडिटी की डिमांड 8 है, एक दिन ऐसा है जिसमें 10 है, 2 दिन ऐसे हैं जिसमें 12 है और एक दिन ऐसा है जिसमें 16 यूनिट्स की डिमांड है। तो अनरो डेटा जो होता है, जो सारा मिक्सअप होता है, उसको अलग से एक प्रॉपर वे में जिसको हम क्लासिफाई करके लिखते हैं उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। Thus, the method of representing raw data into systematic and short form is called classification. Meaning of classification most time the method of representing raw data into systematic and short form is called classification. In statistical study, the main reason to classify the data are as follow. अब reasons क्या है classify करने की, necessity क्या है, क्यों करते हैं classify? First is to represent large data into simple, short and attractive manner. कोई भी बड़ा डेटा होता है उसको सिंपल, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव मैनर में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। सेकंड इज फॉर इजी कंपैरिजन बिटवीन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। इजीली हम उसको कंपेयर कर सकते हैं टू सेव टाइम, मनी एंड लेबर। अब जो अनग्रुप डेटा होगा उसमें एक सेंटेंस को जो रीड करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, उसमें टाइम, मनी एंड लेबर ज्यादा कंज्यूम होगा, वो कंज्यूम ना हो उसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर वे में लिख लेते हैं टू सेव मनी, लेबर एंड टाइम। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इजीली रिगार्डिंग वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया अंडर स्टडी। अगर हमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जिसको हम इजीली फाइंड करनी हो, तो अगर क्लासिफिकेशन किया हुआ डेटा होगा तो हम उसको इजीली फाइंड कर पाएंगे, इसलिए क्लासिफाई करना जरूरी है। अब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने के भी 2 टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज classification of quantitative data and the another is classification of qualitative data. Let us understand them by considering the following example. एक एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। Suppose a sample of 100 families is selected from a region and the information regarding the number of children per family is obtained. 100 observations regarding number of children per family are collected and these data are called ungrouped or raw data. सबसे पहले तो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि एक फैमिली में कितने चिल्ड्रन है, ऐसी 100 फैमिलीज की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो 100 फैमिली के पास हम जाएंगे, एक के हम जो घर में कितने चिल्ड्रन है उसको हम फाइंड करेंगे और डेटा जो कलेक्ट करेंगे वो सारा डेटा जो हमने कलेक्ट किया है वो होगा रो डेटा, अनग्रुप्ड डेटा।
Now, on the basis of the study, it is concluded that there are 10 families having no children, 35 families having one child, 40 families having two children, and 15 families having three children. This is called quantitative classification, and consciously it can be represented as under. अब अगर 100 फैमिली से हम मिलते हैं तो हम 1 to 100 फैमिली, फिर उसमें इतने चिल्ड्रन है, इतने चिल्ड्रन है, इतने चिल्ड्रन है, ऐसा लिखने की बजाय हम क्या लिख देते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे अगर हम लिख लें नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ फैमिली, अगर हम ऐसी दो कॉलम बना ले, दो रो बना ले, तो उसमें इजीली हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि कितने फैमिलीज यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन which is 0, 1, 2 and 3, 0, 1, 2, 3 नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्योंकि ऐसी कई फैमिली है जिस फैमिली में कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, कुछ फैमिली में एक चाइल्ड है, कुछ में दो, कुछ में तीन, तो ऐसे क्लासिफिकेशन कर देते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0, 1, 2, 3। अब कंक्लूजन हमें क्या मिला कि ऐसी 10 फैमिलीज है जिसमें एक भी चाइल्ड नहीं है, तो 0 चाइल्ड, कितनी फैमिली है ऐसी 10। उसके बाद 35 फैमिलीज हैविंग वन चाइल्ड, यानी कि एक चाइल्ड जो हो, ऐसी 35 फैमिलीज है। यहाँ पे है नंबर ऑफ फैमिलीज, यहाँ पे है नंबर ऑफ चाइल्ड। फिर 40 फैमिलीज ऐसे है जिसमें दो चिल्ड्रन है, तो दो चिल्ड्रन है, ऐसी कितनी फैमिलीज है 40। और 15 फैमिलीज इतनी है जिसमें 3 चिल्ड्रन है। समझ में आ रहा है? टोटल हमने 100 फैमिलीज की जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो हमें इस तरह से इंफॉर्मेशन मिली। तो 100 फैमिलीज की जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसको बोलते हैं रो डेटा, और उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। समझ में आ रहा है? In the above example, number of children per family in a numeric variable, and hence it is called numerical classification of frequency distribution. In the above example, instead of number of children per family, if the occupation of 30 families is farming, for occupation of 25 in business, for occupation 25 is service, and for occupation of remaining 20 families is labor, then this is also called classification and can be represented as under. अब यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिया है, इस तरह से अगर वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें क्लासिफाई करनी है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि फार्मिंग कितनी फैमिलीज कर रहे हैं, बिजनेस कितनी फैमिलीज का है, सर्विस कितनी फैमिली में है, लेबर कौन कर रहा है, इस तरह से भी हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इन शॉर्ट, क्लासिफिकेशन मीन्स रो डेटा, अनग्रुप डेटा को सिस्टमेटिक मैनर में, प्रॉपर मैनर में, टेबल फॉर्म में लिखने का जो है मेथड, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बारे में, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको आप रीड कीजिएगा तब तक और रिवाइज कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ये जो थियोरिकल सारी जो इन्फॉर्मेशन है, विच डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आज के लिए सिर्फ इतना। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।